Hello guys, the next lecture of ionic equilibria is all about buffer solution. Now what are buffer solution? Now before starting with the buffer solution, I'll give you some examples which can relate with these type of buffer solution and what is their role. For example, a human blood has a pH of around 7.2 or 7.3 के आसपास होता है pH. And if the pH in a body changes to a large amount, to a considerable amount, it causes a lot of destruction inside a body. Damage कर देगा. But daily we consume organic foods which have organic base, organic acids in them. ठीक है. अब एसिड डालने से, बेस डालने से pH चेंज होना चाहिए. एसिड डालने से pH कम होना चाहिए. By adding base, pH should increase. But after consuming organic foods inside a body on daily basis, the pH of the blood doesn't change. The pH will remain what? Constant. तो क्यों ऐसा ये pH constant है बॉडी का? After consuming organic acid and organic base, the pH of the body will remain constant. Then you have seen some canned foods जिसमें shelf life 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, the shelf life is given over there. In that canned food, again, if the pH of the food inside changes, it can spoil the food. But 6 महीने तक, for 6 months, for 1 year, for 1.5 years, depending upon the product, the pH inside those packed food doesn't change. Many industries which make medicines or which make different chemicals, they require a constant medium to carry out a reaction to make that product. वो मीडियम एसिडिक हो सकता है, वो मीडियम बेसिक हो सकता है, वो मीडियम न्यूट्रल हो सकता है. तो आपको मैं अभी जितने भी एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, सब में कॉमन चीज ये है कि all cases the pH of the medium is remaining constant. जैसे हमारी बॉडी का pH है, it is remaining constant. The pH of canned foods, the pH of packed food is remaining constant for a long time. It is not changing. ठीक है. The pH for making different medicines, for making different chemical, in that reaction it is constant. तो क्या ऐसी चीज़ है जो pH को कांस्टेंट करके रखती है, pH को पकड़ के रखती है, इन स्पाइट ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. आप अपनी बॉडी में वाटर ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस ऐड कर रहे हो, वीक एसिड ऐड कर रहे हो, कभी कभार स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड हो गया, बट आपके बॉडी का जो pH है, या स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऐड हो गया, लेकिन आपके बॉडी का जो pH है, स्मॉल अमाउंट में ऐड हो रहा है, बॉडी का pH है, दैट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. सो वॉट is that substance which keep the pH constant throughout in any system? That substance is called as buffer solution. So buffer solution is that solution which maintains a constant pH of a system in spite of dilution, in spite of adding small amount of strong base या strong acid. Small amount, large amount नहीं, large amount पे change हो जाएगा, small amount. In spite of keeping it for a long time at different temperature, the pH of the system will remain constant. That solution which keep the pH of the system remain constant on dilution or on adding of small amount of strong acid or strong base, or keeping it for a long time, or with respect to temperature, that solution is called as buffer solution. So अगर मुझे ये लिखना है कि buffer solution के बारे में, तो buffer solution are those solutions. Buffer solutions are those which keep constant pH of the system. मतलब which maintain constant pH of the system. Okay. तो buffer solution are those solutions which maintain constant pH of the solution in spite of adding. pH will remain constant even if we add small amount of strong acid or strong base. Small amount, large amount पे कोई भी pH चेंज हो जाएगा. अभी हमारे स्टमक में HCl है, तो सपोज आप HCl का एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे हो, टाइट्रेशन, एंड यू वांट टू रिमूव HCl फ्रॉम अ बीकर, 10 ml HCl निकालना है थ्रू अ पिपेट. आपने वो डाइल्यूट HCl थोड़ा सा आपने वो थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया गलती से, इट इज अ मिस्टेक, okay, and by mistake you consume small amount of HCl. It doesn't
हैम्पर यू। आपके स्टमक में ऑलरेडी HCl रहता है, प्लस आपकी बॉडी में एक बफर सिस्टम है, कार्बोनेट बफर सिस्टम, जो pH को मेंटेन करके रखता है। ओके, सो व्हेन इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और on dilution or keeping for long time और temperature, ये सबसे भी इसका pH चेंज, सिस्टम का pH चेंज नहीं होता, उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सोल्यूशन। सो बफर सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच मेंटेन कांस्टेंट pH ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। जिस सिस्टम में ऐड करोगे उसका वो pH कांस्टेंट रहेगा, even if you add small amount of strong acid, strong base to it, or you dilute that system, or you keep it for a long period of a time, or you change temperature, the pH of the system will remain constant. That solution is called as buffer solution, which helps in maintaining the constant pH. अब buffer solution तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला buffer solution होता है acidic buffer solution। Obviously इसका जो pH होगा वो less than 7 होगा। दूसरा होता है बेसिक बफर सोल्यूशन, तीसरा होता है सिंगल सॉल्ट और न्यूट्रल बफर सोल्यूशन। पहले मैं आपको एसिड बफर सोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, हाउ विल यू मेक इट, हाउ विल यू प्रिपेयर इट। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाने के लिए यू रिक्वायर अ वीक एसिड प्लस अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देख लो, आपको एक वीक एसिड के साथ सॉल्ट मिक्स करना है, बट वो सॉल्ट किसका होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और ये जो सॉल्ट में वीक एसिड होगा वो इससे सिमिलर होना चाहिए। सर एग्जाम्पल दो, मैं एग्जाम्पल देता हूं। यू टेक अ वीक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है। इसमें आप एक सॉल्ट ऐड करो। देखो सॉल्ट कौन सा है, लिख रहा हूं मैं, सोडियम एसिटेट। गाइस ये सॉल्ट सोडियम एसिटेट है। सोडियम एसिटेट किससे बना होगा, एसिडिक एसिड प्लस NaOH से बना होगा। मतलब यू हैव टू टेक अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। और जो वीक एसिड आपने लिया है वो वीक एसिड के साथ में कॉमन होना चाहिए। देखो ये कॉमन पार्ट है, मतलब ये वीक एसिड और इसी का ही सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सो यू टुक एसिडिक एसिड, यू टुक एसिडिक एसिड का सोल्यूशन प्लस यू टुक अ सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो एसिडिक बफर बनाने के लिए यू रिक्वायर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वही वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अभी सपोज मुझे ये बनाना है बेसिक बफर। तो बेसिक बफर सिस्टम क्या होगा, जिसमें pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है। हाउ टू मेक इट, चलो उसको बनाएंगे कैसे। यू रिक्वायर अ वीक बेस, यहाँ पर आपने लिया वीक एसिड, तो यहाँ वीक बेस लेंगे प्लस एक सॉल्ट लेना है। वो सॉल्ट किसका होना चाहिए, वही वीक बेस का लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। फॉर एग्जाम्पल NH4OH इज अ वीक बेस। अब इसी को ही अगर आप HCl से रिएक्ट करोगे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो व्हेन यू रिएक्ट NH4OH अ वीक बेस विद HCl, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो NH4Cl होगा। सो NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो ये दोनों को मिक्स किया तो बेसिक बफर बन रहा है, ये दोनों को मिक्स किया तो एसिडिक बफर बन रहा है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का बफर सिस्टम होता है, थर्ड टाइप का होता है, वो थर्ड टाइप होता है सिंगल सॉल्ट बफर सिस्टम, जिसका pH ऑलमोस्ट अराउंड 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ये किससे बनता है, ये सिंगल सॉल्ट, नाम ही देखो क्या है, सिंगल सॉल्ट मतलब जिस रिक्वायर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। किसी वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट ले लो, मतलब समझो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, NH4H वीक बेस है, ये दोनों को कंबाइन करोगे तो एक सॉल्ट बनेगा CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट। तो अमोनियम एसिटेट एक सिंगल सॉल्ट बफर हो गया, pH 7 है। ये दोनों को मिक्स किया एसिडिक बफर, ये दोनों को मिक्स किया बेसिक बफर। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि how will you prepare these solutions. So to make a acidic buffer you require a weak acid and its salt with a strong base. To prepare basic buffer you require a weak base and its salt with a strong acid. To prepare a single salt buffer you require a salt of weak acid and weak base, a single salt। नाम ही वही है, सिंगल सॉल्ट चाहिए। बट बफर सोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि बफर सोल्यूशन को आप कहीं पर भी ऐड करोगे
तो वो pH को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। either by adding small amount of strong acid or you add dilute or you do dilution or you keep it for a long time, उस सिस्टम का बफर सोल्यूशन pH चेंज होने देने वाला नहीं है, होगा तो भी इन अ स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, विच ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर बफर सोल्यूशन में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से उसका pH चेंज नहीं होता। तो फॉर दैट we need to study buffer mechanism. So let us talk about acidic buffer mechanism. ठीक है। Now acidic buffer बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एसिडिक एसिड आपने एक्वस मीडिया में ले लिया जो कम अमाउंट में डिसोसिएट होगा क्योंकि वो वीक एसिड है, टू गिव व्हाट CH3CO- and H+ इन एक्वस मीडिया। फिर आपने एक सॉल्ट डाल दिया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद डिसोसिएट कंप्लीटली टू फॉर्म CH3CO- and Na+। Now because of this कॉमन आयन ये रिएक्शन तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, याद है सप्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन ये रिएक्शन रिवर्स हो गया, रिवर्स होने की वजह से दे विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनआयोनाइज एसिडिक एसिड। अच्छा ये तो पूरा के पूरा डिसोसिएट हुआ, मतलब ये तो अभी है ही नहीं। सो वी हैव व्हाट एसिडेड आयंस इन द सोल्यूशन, वी हैव Na+ का कोई रोल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। वी कंज्यूम दिस के वी अज्यूम दैट यू हैव लॉट ऑफ एसिड आयंस इन द सोल्यूशन एंड यू हैव लॉट ऑफ अनआयोनाइज एसिडिक एसिड बिकॉज ये रिएक्शन रिवर्स हुआ है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। तो अब सोल्यूशन में क्या क्या है? इन दिस सोल्यूशन वी हैव एसिडिक एसिड लार्ज अमाउंट एंड वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडेड आयंस। अब बराबर देखो, एसिडिक एसिड एक एसिड है और एसिटेट आयन ये क्या है? एसिडेड आयन इज अ नेगेटिव स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट H+ आयंस। ये H+ आयंस को एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ सर ये एक्सेप्ट कर सकता है। सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H+ आयंस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है। तो लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से ये एक बेस है। अब बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे तो वैसे के वैसे ही रहता है, सिस्टम वैसे ही रहता है, pH चेंज नहीं होता, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये एसिड इसमें रखा हुआ है। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज ए रिजर्व्ड एसिड एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ए रिजर्व्ड बेस। मतलब एसिडिक बफर सिस्टम में एक रिजर्व एसिड होता है, एक रिजर्व बेस होता है। वो किसके लिए काम आता है? लेट्स सी। सपोज इस सिस्टम में आपने थोड़ा सा HCl डाल दिया, स्मॉल अमाउंट HCl आपने डाल दिया। अब आप सोचेंगे सर इस सिस्टम में HCl गया है मतलब H+ और Cl- प्रोड्यूस होगा एंड बिकॉज ऑफ H+ आयंस pH विल चेंज क्योंकि pH इज माइनस लॉक टू द बेस ऑफ H+ आयंस। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप थोड़ा HCl डाल रहे हो, pH चेक कर रहे हो, सपोज इसका pH, सपोज ये सिस्टम का pH है 4.5, HCl डालने के बाद में ये हो गया, HCl ऐड करने के स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ना, ज़्यादा नहीं, व्हेन यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl, अब pH हो गया 4.47। अब बोलेंगे सर सॉरी 4.97। अब बोलेंगे सर 4.97 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.97 क्या, सॉरी 4.47। तो आप बोलेंगे सर 4.47 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट 4.5। मैंने बोला हाँ pH सिर्फ 0.03% ही चेंज हुआ है, वेरी लेस, नेग्लिजिबल, निकाल दो इसको, यही कांस्टेंट रखो। आप बोलेंगे सर ज़्यादा चेंज क्यों नहीं हुआ, ये कांस्टेंट क्यों रह गया? आपने तो HCl ऐड किया, HCl मतलब मोर अमाउंट ऑफ H+ और H+ ज़्यादा होने की वजह से pH ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन pH तो ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, वो 4.5 से 4.47 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ही है। तो क्यों नहीं हुआ? मेरा इसके लिए बिकॉज जब आपका HCl H+ प्रोड्यूस करता है, आपके सिस्टम में रिजर्व बेस है, ये रिजर्व बेस क्या करता है, H+ को न्यूट्रलाइज करके कन्वर्ट कर देता है एसिडिक एसिड में। तो जब H+ न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फ्री H+ ज़्यादा नहीं रहेगा, फ्री H+ नहीं रहेगा मतलब pH पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली व्हेन यू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल डिसोशिएट टू फॉर्म Na+ एंड OH- आयंस। अभी OH- आयन से POH चेंज होगा तो pH चेंज होगा, लेकिन इस केस में भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अब सिस्टम में रिजर्व एसिड का काम आ जाएगा। रिजर्व एसिड
will combine with this OH minus, neutralize it to form CH3CO minus and H2O. देखो OH minus neutralize हो गया. तो when you add small amount of strong acid या small amount of strong base, the pH of the buffer solution doesn't change. जो change होगा वो इतना negligible होगा कि you say it doesn't change. Why? Because every system has reserve acid and reserve base to neutralize it. अब जैसा ये है बेसिक बफर, अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपने एक वीक बेस लिया है विच डिसोसिएट टू फॉर्म NH4 प्लस एंड OH माइनस, फिर आप एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डाल रहे हो टू फॉर्म NH4 प्लस एंड Cl माइनस. ये कॉमन आयन की वजह से ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, तो ये रिएक्शन से कम हो गए, ये रिएक्शन में पूरा डिसोसिएट हो गया, तो ये तो है ही नहीं आयन आयनाइज फॉर्म. सो नाउ यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ NH4OH, दिस विल बी योर रिजर्व बेस, and large amount of NH4 plus, that is your reserve acid. NH4 plus एक reserve acid है because वो प्रोटॉन डोनर है. तो जब आप HCl ऐड करते हो तो HCl को NH4OH न्यूट्रलाइज करेगा टू फॉर्म NH4Cl. जब आप NaOH ऐड करोगे तो NaOH को NH4 प्लस न्यूट्रलाइज करेगा, तो जिसके वजह से स्मॉल strong base या small amount of strong acid add करने में the pH of the solution doesn't change because system has reserve acid and reserve base to neutralize. System have reserve acid and reserve base to neutralize external acid and base. That is why the pH of the solution will remain constant. Okay. Now single salt में देखो, it has CH3COO minus and NH4 plus. दोनों चीज है इसके अंदर. CH3CO माइनस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये रिजर्व बेस हुआ. NH4 प्लस प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो ये रिजर्व एसिड हुआ. तो जब इसके अंदर भी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो रिजर्व एसिड एंड रिजर्व बेस विल न्यूट्रलाइज देम एंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन वोंट चेंज. सो दिस इज कॉल्ड एज बफर मैकेनिज्म. एवरी बफर हैज रिजर्व एसिड, रिजर्व बेस इनसाइड. ठीक है. When you add small amount of strong acid, strong base, there will be no change, almost no change in pH, because reserve acid inside will try to neutralize the external base and reserve base inside will try to neutralize the external acid, and the pH of the system remains almost constant. This is called as buffer mechanism, and this is the action and role of buffer. Now in a body we have carbonate buffer system. कार्बोनेट बफर सिस्टम मतलब एग्जाम्पल देता हूँ. कार्बोनेट बफर सिस्टम मतलब जो CO2 हमारी बॉडी में है बनता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सम ऑफ द CO2 कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H2CO3. अब H2CO3 इज अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये हमारे ब्लड में है. इट डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट टू फॉर्म H प्लस एंड HCO3 माइनस. अब बराबर देखो, जब हम लोग थोड़ा एसिड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में एक्सटर्नल H प्लस आता है. एक्सटर्नल H प्लस डालते हैं हमारी बॉडी में व्हेन यू कंज्यूम एसिड. बट वो एक्सटर्नल H प्लस की वजह से pH चेंज नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ pH, ये रिएक्शन जो बफर का है हमारी बॉडी में, कार्बोनेट बफर सिस्टम, ये बैकवर्ड चले जाता है. बैकवर्ड जाने की वजह से ज़्यादा CO2 बॉडी से निकल जाता है. एंड इफ दिस रिएक्शन इज रिवर्स, जो बॉडी का H प्लस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो एक्सटर्नल H प्लस है वो उसको मेंटेन करने के लिए ऐड हो जाएगा. सो नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ H प्लस विल रिमेन कांस्टेंट. आपने समझो 0.1 मोल एक्स्ट्रा डाल दिया है बॉडी के अंदर, तो 0.1 मोल बॉडी में से रिवर्स होके वापस CO2 बन जाएगा. रिवर्स रिएक्शन होगा. ओके, टू फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड यू कैन से. अच्छा, अगर आपने बॉडी में थोड़ा बेस ऐड किया है तो दिस कार्बोनिक विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस मोर H प्लस विच कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस बेस इनसाइड. तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा. बेस ऐड करोगे तो कार्बोनिक का रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टू प्रोड्यूस मोर H प्लस टू न्यूट्रलाइज बेस, ताकि pH आपका ब्लड का कांस्टेंट रहे. अगर आप एसिड ऐड करोगे तो कार्बोनिक का रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि H प्लस कम हो सके, क्योंकि आपने एक्सटर्नल H प्लस डाला है टू मेंटेन द H प्लस वैल्यू. सो इन अ ब्लड वी हैव कार्बोनेट बफर सिस्टम विच मेंटेन अ कांस्टेंट pH. सो द रोल ऑफ बफर सिस्टम is to maintain constant pH by addition of small amount of, large नहीं, large डालेंगे तो pH change होगा, small amount of strong acid, strong base, dilution, keep it for a long time at a fixed temperature, the pH will remain constant. Okay, 3 टाइप के बफर सिस्टम है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक बनाने के लिए वीक एसिड लो और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिसकी वजह से अंदर 2 कंपोनेंट मिलेंगे, रिजर्व एसिड, रिजर्व बेस.
बेसिक बफर बनाने के लिए रिक्वायर वीक बेस एंड इट्स सॉल्व विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. अगेन दो कंपोनेंट मिलेंगे, रिजर्व एसिड, रिजर्व बेस. सिंगल सॉल्ट जो न्यूट्रल है, इसको बनाने के लिए रिक्वायर ओनली अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस. उसमें भी आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, रिजर्व एसिड एंड रिजर्व बेस, विच विल न्यूट्रलाइज एक्सटर्नल एसिड या एक्सटर्नल बेस एडेड. Okay guys, so this is all about buffer solution. I hope you understood this lecture. Okay, take care, bye. Hello students, this part is a continuation of acid and basic buffer. It's all about buffer solution. We are going to derive a mathematical equation for a buffer solution which help us to calculate pH of acidic buffer and pH of basic buffer. मतलब आप buffer solution का pH इस formula से calculate कर सकते हो. This part is not there in your theory. It is only for JEE and NEET. Okay. So that equation for buffer solution is called as Henderson-Hasselbalch equation for buffer solution. Okay. Now let us talk about acidic buffer. अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एसिडिक बफर कैसे बनाया जाता है. टू मेक एसिडिक बफर यू रिक्वायर अ वीक एसिड प्लस यू रिक्वायर अ सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ सेम वीक एसिड विद अ another strong base. Okay, so we consider a weak acid as HA. Suppose मैंने एक weak acid लिया है HA. It will dissociate feebly to give H plus and A minus ions in aqueous media. So aqueous media में बहुत कम dissociation होगा because it is a weak electrolyte. Now you add a salt BA which should have a part common to acid क्योंकि वो वही weak acid और strong base से बनना चाहिए. So when you add a salt in aqueous media, it will dissociate completely to gives B plus in aqueous media and A minus in aqueous media, which is a common ion. Now do you remember because of this common ion, this reaction get reversed? ठीक है? Now for this reversible reaction, when we apply law of mass action, we get Ka is equal to molar concentration of H plus into molar concentration of A minus upon molar concentration of HA. Now H plus को मैं एक साइड ले लेता हूँ. So H plus will be equal to Ka into molar concentration of unionized acid upon molar concentration of A minus. Now this is unionized acid, मतलब concentration of acid. This becomes what? A minus. Now this A minus, large amount of A minus come from a salt. मतलब concentration of A minus, we can write down concentration of A minus is nothing but equal to concentration of salt जो आपने लिया है. अगर ये 1 मोल लिया तो ये 1 मोल होगा बिकॉज ये रिएक्शन तो रिवर्स हो जाता है. इसके लिए इसका अनायनिक कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HA इज लेस, एक्सट्रीमली लेस, क्योंकि पहले ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन पहले ही बहुत कम है, इट्स वेरी वेरी लेस. फिर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ कॉमन आयन, तो बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट दिस एंटायर रिएक्शन गेट रिवर्स. और अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो गया तो A minus ions which are coming from HA, the concentration of A minus ions which are coming from HA will be negligible. So the entire concentration of A minus, we can say the entire A minus is actually coming from BA, the salt. तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ concentration of BA, that is nothing but the salt. Clear है? So now this equation can be written as H plus is equal to Ka into initial concentration of acid upon initial concentration of salt, क्योंकि HA represents acid, A minus represents salt. Now you apply log on both sides, so we get log to the base 10 of H plus is equal to log to the base 10 of Ka plus log to the base 10 molar concentration of acid upon molar concentration of salt. Taking negative multiplying by -1 on both the side, we get minus log to the base 10 minus log Ka minus log to the base 10 of acid upon salt. लेकिन अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया so it become plus salt upon acid. Okay, now minus log to the base 10 of H plus ions concentration, by definition it will be pH, equal to, this will be what, pKa plus log
to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. So this is initial concentration of your salt and this is initial concentration of the acid. Okay, just remember that. Initial concentration of salt and this is the initial concentration of acid. So pH is equal to pKa plus log to the base 10. pH is equal to pKa plus log the base 10 concentration of salt upon concentration of acid. Using this formula you can calculate the pH of acidic buffer. अगर यही फॉर्मूला मुझे बेसिक बफर के लिए बनाना है, सो फॉर बेसिक बफर सोल्यूशन pH की जगह पे H प्लस की जगह पे इट शुड बी व्हाट OH माइनस साइंस, मतलब यू विल कैलकुलेट POH. तो नाउ द फॉर्मूला बिकम्स POH इज इक्वल टू pKb plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base. यहाँ से POH मिलेगा, 14 minus POH करोगे तो you will get the value of pH. So Henderson-Hasselbalch equation will be useful for calculation of numerical based on acidic and basic buffer. ये आपकी theory में नहीं है but definitely it is helpful for your MCQ. Okay, तो copy it down, note down the important formulas.